So can you do 61? हाँ. Okay. An acidic solution of dichromate is electrolyzed for 8 minutes using 2 ampere current as per the following equation. This is the famous dichromate ka reaction, which is Cr2O7 minus 2 in acidic medium with 14H plus with the gain of 6 electrons giving you 2 moles of chromium plus 3 and 7H2O. The amount of Cr plus 3 obtained was 0.104 grams. The efficiency of the process is how much? In percentage, they are asking the efficiency. So efficiency ढूंढेंगे कैसे? As per the past charge, मतलब जो current और time दिया हुआ है, उसके हिसाब से the amount of the chromium could be found out. ठीक है, तो that would be the theoretical amount. और जो actual amount मिल रहा है practically, that is 0.104 which is given. So then you take the ratio and you can get the efficiency. Approach clear? आपको theoretical chromium का weight ढूंढना है as per this equation. अब वो कैसे ढूंढेंगे? If you observe this equation, there are 6 electrons which are gained by the dichromate. So that is equal to how much charge? 6 Faraday. 6 Faraday. 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर होता है. मतलब ये 6 into 96,500 coulombic चार्ज के बराबर होगा. Now with this much of charge, how many moles of chromium are getting deposited from the dichromate? 2 moles. ठीक है, तो यहाँ पर 2 moles का डिपोजिशन हो रहा है. अब एक्चुअल चार्ज जो पास किया हुआ है, दैट इज करंट इनटू टाइम ऑफ 8 मिनट्स टू बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंड्स, तो ये कुलम्बिक चार्ज हो गया. इसके लिए आप एक्स अमाउंट ढूंढ लो, तो इसको ग्राम्स में करना है, तो 2 इंटू क्रोमियम का मोलर मास दिया हुआ है 52. ठीक है, सो दिस एक्स इज द थियोरेटिकल वेट ऑफ क्रोमियम विच यू विल गेट. सो अब एफिशिएंसी कैसे ढूंढेंगे? 0.104 अपॉन जो थियोरेटिकल आपने ढूंढा इंटू 100. समझा? Yes, sir. Now, in most of the questions which were asked in 2021, in the numerical value type, you can see in the bracket they are mentioned nearest integer. But last year 2020 में most of the questions में nearest integer mention नहीं किया था. वहां पर they were expecting you to answer it to the 2 decimal places. ठीक है, मतलब अगर 159.9 आ रहा है तो आपको 159 लिखना है, मतलब 160 भी गलत हो जाएगा उस केस में. So last year was pathetic with respect to numerical value questions. This year better है because nearest integer में काफी relaxation हो जाता है, because even if your error of 0.01% is there, it's okay, that can be considerable. उसमें उतना फर्क नहीं है और थोड़ा approximation आप कर सकते हो. ठीक है, चलो next. So can you do 45? 40, 45 and 47. 45, 47. Resistance of 0.2 molar solution of an electrolyte is 50 ohm. एक solution है जिसका concentration 0.2 molar है, resistance 50 ohm है. The specific conductance of the solution is 1.4, that is K 1.4 Siemens per meter. The resistance of 0.5 molar solution of the same electrolyte. Electrolyte same है but concentration differ कर रहा है 0.5. उसका resistance 280 ohm है. The molar conductivity of 0.5 molar solution of the electrolyte is how much? So lambda m is asked. Now observe they have asked the lambda m in Siemens meter square per mole.
और हम जो फॉर्मूला नॉर्मली यूज करते हैं दैट इज एज पर द कॉमन यूनिट्स. दिस इज इन SI यूनिट्स. सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट द यूनिट्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. अब when the electrolyte is same, the length upon the area, the distance between the electrodes and the area of cross section is always a constant. What is that called? Cell constant. Cell constant. So basically ये दो अलग solutions के लिए I can say that K1R1 is equal to K2R2. तो इससे फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, कंडक्टिविटी को निकालूंगा फॉर द सोल्यूशन नंबर 2. थ्रू द कंडक्टिविटी लैम्डा m could be found as K by C, not 1000 K by C, because उस केस में सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल वाला यूनिट आ जाएगा. प्लीज टेक केयर अबाउट द यूनिट्स. हाँ, ठीक है. तो अब यहां पर आई जस्ट सब्सटीट्यूट 1.4 इनटू बेकार वाला फॉर्मूला B इक्वल टू KR. तो B कांस्टेंट है तो K1R1 इक्वल टू K2R2 लिया है. सो 1.4 इनटू 50 विल बी इक्वल टू 280 इनटू K2. ठीक है. तो ये हो जाएगा 200 और ये 1/4 हो जाएगा. सो K2 वुड बी equal to 0.25. And what is the unit of K which I will get? Siemens meter inverse. Siemens meter inverse. ये जो दिया है वही यूनिट आएगा, which is the SI unit, which is what we want, है ना. अब नेक्स्ट स्टेप में लैम्डा m is equal to K by C. Don't apply 1000 K by C. Now K is already in the SI unit. Check, is the concentration in the SI unit? No. Of course not, because ये मोलर है, which is mole per dm cube, और मुझे चाहिएगा मीटर क्यूब. तो K का वैल्यू तो 1/4 हो गया एंड कॉन्सेंट्रेशन इज 0.5. दिस इज मोल पर dm क्यूब, है ना. dm क्यूब है मतलब ऊपर मुझे मीटर क्यूब लाना है. तो मीटर क्यूब लाने के लिए आई शुड मल्टीप्लाई 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. तो 10⁻³ करेक्ट. तो अब ये मोल पर मीटर क्यूब में आ गया और सीमेंस पर मीटर तो है ही. सो अब यहां पर आई गेट द रिक्वायर्ड यूनिट ऑफ सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, and the answer would be 4 into 0.5 is 2, that is 0.5 into 10⁻³ which is equal to 5 into 10⁻⁻4 Siemens meter square per mole. Is this clear? Yes, sir. So it was all about the unit conversion. Rest कुछ था ही नहीं इसमें. खाली अगर ये यूनिट में गड़बड़ कर दिया then you're gone, because options देखो 5 तो सब में कॉमन है, only the 10 का powers is changing. And you asked 47 ना. So it's similar. सिमिलर है. हाँ, इसमें भी वही सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल एंड कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन इन मोलार. सो सेम 10⁻³ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आप अब यहां पर देखो, दो चीजें याद रख सकते हो. 1000 K by C वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं? व्हेन K इज इन सीमेंस पर सेंटीमीटर, concentration is in the regular or the commonly used unit of mole per dm cube. In that case 1000 बैलेंस करते हैं हम and we get the lambda m with the unit of Siemens centimeter square mole inverse. ठीक है, ये तो मैंने बताया हुआ है. अब एक और चीज आप याद रख सकते हो, lambda m equal to 10⁻³ K by C will be used when K is in Siemens per meter, concentration is in mole per dm cube. अब ये कैसा आया वो मैंने बता दिया, उसको जस्ट मैंने जनरलाइज कर दिया है. चलेगा ना? Yes, sir. नाउ द थिंग्स आर इजी. 1000 मल्टीप्लाई करना है जब ये सेंटीमीटर में हो और 10⁻³ मल्टीप्लाई करना है जब ये मीटर में हो. बस कॉन्सेंट्रेशन इज इन मोल पर डीएम क्यूब ओनली, ऑलवेज. खाली के का यूनिट डिफर करेगा. चलो नेक्स्ट.
While solving the numerical type, observe the like approximation which is to be done. बहुत बार ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज दिया है, जैसे r का वैल्यू 8.314 की जगह दे आस्क यू टू टेक इट एज 8 या दे give you the value as 8.3. So in those cases you have to take the value as given in the bracket because that will give you the easier calculation. और वो नहीं किया तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में थोड़ा भी फर्क आया तो you might go wrong. So bracket wala values are to be used. So can you do 105? काम करता हूँ. I'll discuss few of the important questions which I feel are good questions या थोड़ा difficult था या कुछ conceptual था. तो मेरे साइड से भी करता हूँ. उसके अलावा whatever doubts you have, you can ask. Because आप लोग तो ज्यादा कुछ doubts पूछते ही नहीं हो. या तो आपको सब कुछ आता है या कुछ भी नहीं आता है. बीच वाला कोई केस ही नहीं इधर. Okay. 58 is similar to what we just discussed related to molar conductivity. एक बार देख लो. 5 millimole per dm cube. MMOL is millimolar. बहुत बार बच्चों को समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है और बोलते मिस्टेक है, एक m ज्यादा आ गया है. सच में ऐसा हुआ है या? तो ये मिलीमोल होता है. A 5 millimole per dm cube aqueous solution of KCl has a conductance of 0.55 millisiemens. Millisiemens when measured in a cell of cell constant 1.3 per centimeter. The molar conductivity of this solution is dash in millisiemens meter square per mole. Again, it's all about the units which you have to take care. So the molar conductivity for any solution is equal to K by C. Now K is not directly given, but indirectly there's something else which is related with K. What is that? K is equal to B by R. हाँ, मतलब बेकार के रिलेशन से आपको K की जगह B by R सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है. अब रेजिस्टेंस नहीं दिया, कंडक्टेंस दिया है. So reciprocal of resistance is conductance, मतलब B into G by C. Now this is what you have to substitute. ठीक है. अब to get in Siemens meter square per mole, Siemens और मोल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, खाली लेंथ वाले जो यूनिट्स है ना उसमें you have to take care, right? So B जो है that's given in centimeter inverse 1.3 per centimeter. Now to convert to meter, what should I do? Should I divide by 100 or multiply by 100? Multiply by 100. हाँ, क्योंकि पर सेंटीमीटर है. ठीक है. तो सेंटीमीटर नीचे है तो इफ आई कन्वर्ट टू मीटर 10⁻² मीटर नीचे आएगा. तो जो 10⁻² है दैट विल गो ऊपर एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100. दैट इज फर्स्ट थिंग. कंडक्टेंस में कोई इश्यू नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर लो 0.55 एंड द यूनिट इज मिली सीमेंस. इसको मैं मिली में ही रखता हूं. ठीक है. क्या कर रहा हूं? आई एम ऑल्सो राइटिंग द यूनिट्स अलॉन्ग साइड सो दैट इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड. एंड नीचे we have the concentration of 5 millimole. तो 5 और यहां पर millimole per dm cube. So dm cube को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था हमने? Multiply by 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ बस. समझा? Yes, sir. Yes, sir. That's it. Now it is simple calculation which could be done and you can get the answer. So can you do 105? अच्छा, एक और चीज. वेट. ये मिलीसीमेंस और मिलीमोल्स था.
तो ये मिली मिली तो कैंसिल हो जाएगा. व्हाट वी गेट इज सिमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल. नाउ दे हैव आस्क्ड इन मिलीसीमेंस, तो आप इस 10⁻³ को सेपरेट आउट कर दोगे और फिर आपको फाइनल आंसर ये देखो 1.3 इंटू 55/5. तो ये 5 इंटू 11 इंटू 1.3 इज जो भी आएगा आंसर 1.4 1.4 नहीं 14.3 आएगा ना. और अब ये मिली सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा. तो सिंस दे वर आस्किंग इन मिली, मतलब ये 10⁻³ को आप सेपरेट आउट कर लो, ये आपके कैलकुलेशन में नहीं आएगा. सो द आंसर इंटीजर वैल्यू टाइप था, इसलिए 14 वुड बी द आंसर. गॉट इट? हाँ, कौन सा पूछा? 105. आता हूँ 105 पे आता हूँ, डोंट वरी. पहले सीक्वेंस में जाते हैं, फिर मैं पूछता हूँ आपको बीच बीच में. 66 वाला क्वेश्चन देखो. फॉर द गिवन सेल ऑफ कॉपर in contact with copper +2 with the concentration C1 indirectly connected via salt bridge with copper 2+ ion having a concentration C2 and in contact with copper. The change in Gibbs energy delta G is negative if you have to analyze the condition, compare C1 and C2 to get delta G negative. How do you proceed? Delta G is negative if E is positive. For delta G to be negative, E should be positive. So E कैसे find करेंगे? Nernst equation. And before you write Nernst equation, you should write Balanced reaction. balanced reaction. ये भूलना नहीं. Nernst equation apply करना है तो balanced reaction लिखना है. So copper is oxidizing to copper 2+ with a concentration C1 and the copper 2+ with concentration C2 is reducing to Cu. This is your anode, this is the cathode, this is oxidation and this is reduction, right? Or एक observation, if the electrochemical cell is made of two similar electrodes, what is it called? Concentration cell. Concentration cell बोलते हैं इसको. And for concentration cell, the E naught is 0. ठीक है, वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो भी 0 ही समझ में आएगा. तो E of the cell using the Nernst equation will be 0 minus 0.06/2 into 0.059 होता है, इसको अप्रॉक्स करके 0.06 लिया जा सकता है, into log to the base 10 product concentration upon the reactant. अब E सेल माइनस साइन के साथ है, तो अगर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है तो दिस टर्म शुड बी हाँ रेसिप्रोकल कर सकते हो. एंड आप बोल सकते हो C2 जो है वो C1 से greater होना चाहिए. So the condition is if C2 is greater than C1. So which satisfies the condition? D. D. C2 should be √2 times C1. ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. ठीक है. अब 67 बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है. प्रीवियस ईयर में इनफैक्ट 2021 में ऐसे 3 सिमिलर क्वेश्चंस थे. एंड इफ यू ऑब्जर्व व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ redox electrode. ठीक है. तो given that the standard potentials of copper 2+ copper and copper plus copper, क्यूप्रिक से कॉपर और क्यूपरस से कॉपर दिया हुआ है, आपको क्यूप्रिक कॉपर रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का ईएमएफ ढूंढना है. बराबर. और इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? N1E1 plus N2E2 equal to N3. करेक्ट. N3E3 equal to N1E1 plus N2E2. So आपके दो रिएक्शंस जो दिए हैं, इट्स कॉपर 2+ + 2E minus gives you copper and copper +1 + 1 electron gives you copper. और आपके लिए रिक्वायर्ड क्या है? copper 2+ will gain an electron to form copper +1. ठीक है. तो लेट्स से इसका EMF E3 है, इसका आपको दिया हुआ है 0.34 और इसका 0.522. ठीक है.
So in the first case, what is n? The moles of electrons? 2. ठीक है, तो 2 into 0.34. उसके बाद सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा सच दैट कॉपर कॉपर कैंसिल होकर कॉपर प्लस विल बी ऑन द ऑपोजिट साइड. So what should I do? minus -1 into 0.522 और रिक्वायर्ड के लिए अपने पास n ही है, n1 ही है, into E3. बस हो गया. सिंपल है ना? yes sir. और ऐसा सिमिलर Fe3 प्लस Fe2 प्लस रिडॉक्स इलेक्ट्रोड के लिए भी आता है. उसमें Fe3 प्लस के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होगा, Fe2 प्लस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होगा और रिडॉक्स इलेक्ट्रोड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा. मतलब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 3, 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली. समझा? 2 टाइप के क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए. अगर आपने PYQ सारे सॉल्व किए तो यू विल रियलाइज. हाँ, इनफैक्ट 68 भी वैसा ही है, वो आप कर सकते हो. अभी 71 क्वेश्चन देखो. If the standard electrode potential for a cell is 2 volt at 300 Kelvin, the equilibrium constant for the reaction Daniell cell ही है वो at 300 Kelvin is approximately. Now in the bracket R is equal to 8 joule per Kelvin per mole. 8 मतलब direct approximation कर देना है and Faraday's constant as it is लेना है 96,500. Now what is the formula for equilibrium constant? भूल गए क्या? At equilibrium, the E of the cell becomes equal to 0, delta G of the cell becomes equal to 0, and the Q becomes equal to K, equilibrium. तो नर्स्ट इक्वेशन में ई सेल को जब 0 रखते हो तो आपको फॉर्मूला मिलता है E नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू 0.059 बाय द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डेनियल सेल के लिए 2 है इनटू log टू द बेस 10 के इक्विलिब्रियम. लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ऑप्शंस में दे आर एक्सपेक्टिंग द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल पावर ओनली. इंस्टेड ऑफ log टू द बेस 10 आप सिर्फ ln के फॉर्म में अगर ये करोगे तो e रेज़ टू पावर डायरेक्टली मिल जाएगा. राइट? Yes, sir. और एक प्रॉब्लम है 0.059 जो मैंने लिया है यहां पर, दैट इज फॉर व्हाट टेम्परेचर? 98. 298. तो वैसे यहाँ पर 300 दिया है तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फिर भी अगर 300 के अलावा लेट्स से 325 या ऐसा कोई और टेम्परेचर दिया जाए, यू कांट टेक 0.059. प्लीज रिमेंबर दैट द एक्चुअल फॉर्मूला वाज 2.303 RT by NF. 2.303 RT by NF था. ठीक है, तो जब 2. R is different, right? हाँ, R भी डिफरेंट है, टेम्परेचर भी 298 की जगह 300 है. तो इट्स बेटर यू सॉल्व दिस ओनली. ठीक है, तो अब 2.303 मैं नहीं लूंगा बिकॉज मुझे ln के फॉर्म में ही आंसर लाना है. तो एक्चुअल फॉर्मूला विच आई वुड बी यूजिंग इज log of K equilibrium to the base E with RT by NF taken into consideration. अब E नॉट भी देखो, डेनियल के लिए 1.1 होता है. दे हैव ऑलरेडी गिवन यू अ सिंपलर वैल्यू 2 वोल्ट्स. या हाइपोथेटिकल वैल्यू है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू इसका 1.1 होता है. ठीक है, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, R भी 8 दिया है, टेम्परेचर 300 है, N2 है, ये 96,500 है, एंड दिस इज log of K equilibrium to the base E. अब solve everything and whatever you get on the left hand side, E raised to that power will be the answer. समझा? तो अगर आप कैलकुलेशन करो तो बहुत सिंपल हो जाता है. यहाँ पर log of K equilibrium to the base E is 965 upon 6, which is equal to 160 point something. So E raised to 160 is the answer. Option B.
ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट 73 देखो. In the cell given, that is platinum with H2 gaseous 1 bar pressure in contact with HCl aqueous, in contact with AgCl, in contact with Ag, and then PT. The cell potential, when they say cell potential, matlab, is it standard or non-standard? Non-standard. जब तक स्टैंडर्ड वर्ड मेंशन नहीं किया हुआ है तो वो नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ को ही रेफर कर रहा है. सो ई ऑफ द सेल इज 0.92 volts. When a 10 raised to -6 molar HCl solution is used, the standard electrode potential of the AgCl AgCl negative. What type of electrode is this? Metal sparingly soluble salt. मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड. अगर आप स्प्लिट अप करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में गैसियस इलेक्ट्रोड है और राइट हैंड साइड में मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है. ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढना है. नाउ अगर स्टैंडर्ड को देखोगे तो ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट माइनस लेफ्ट. तो ई नॉट ऑफ मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट ऑफ SHE हो जाएगा. वो मतलब जो ई नॉट ऑफ सेल है वो ही आपका आंसर होगा, राइट, बिकॉज दिस इज रिड्यूस टू 0. तो अब अप्लाई करना है नर्स्ट इक्वेशन, बट नर्स्ट इक्वेशन से पहले राइट Balanced reaction. बैलेंस्ड रिएक्शन. सो H2 इज ऑक्सीडाइज. से लिखने का तरीका या तो हाफ रिएक्शन लिख के नेट रिएक्शन लिखो या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो. H2 विल ऑक्सीडाइज टू 2H प्लस by losing 2 electrons. And metal sparingly soluble salt में क्या होता है, AgCl reduces to Ag along with Cl minus as it is, and there is gain of 1 electron. अब यहाँ पर ये रेडॉक्स तो बैलेंस नहीं है क्योंकि लॉस 2 का है, गेन 1 का है. तो दूसरे वाले रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट 2 से. अब ये बैलेंस रिएक्शन हो गया. समझा? Yes, sir. क्योंकि रिएक्शन गलत तो नर्स्ट इक्वेशन खत्म हो गया, मिस्टेक हो जाएगा. इसलिए बार बार बोल रहा हूं, नर्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले आपको रिएक्शन करेक्टली लिखना पड़ेगा. वंस यू राइट द रिएक्शन देन थिंग्स आर वेरी इजी. सो नाउ द ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.92 जो दिया हुआ है, एंड दैट इन टर्न इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059. अब यहां पर देखो 0.06 उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि अप्रोक्सीमेट कर लो, है ना. अपॉन द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2. जो जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, जस्ट ऑब्जर्व वो कैसे यूज करोगे आप. ठीक है, और वैसे भी MCQ रहेगा जहां 4 ऑप्शंस है, तो फिर 0.059 को 0.06 लोगे, कोई इश्यू नहीं है, आप आंसर कर पाओगे उसको. ठीक है, बट इंटीजर टाइप में बीवेयर, बिकॉज वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, डेसिमल में पूछा है, इसीलिए वहां पर 0.059 के साथ ही कैलकुलेशन करो, इट विल बी बेटर अनलेस मेंशन्ड. ठीक है, एंड नाउ लॉग टू द बेस 10. प्रोडक्ट में आयंस है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, और जो सॉलिड्स हैं उनको तो हम कंसिडर नहीं करते हैं, सो दिस टू विल बी इग्नोर्ड. ठीक है, नाउ व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन? दिया है ना. 10 raised to -6. एंड Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रहेगा. मतलब जो H प्लस स्क्वायर और Cl माइनस स्क्वायर है वो बेसिकली 10 पावर -6 रेज टू 4 हो जाएगा, और जो पार्शियल प्रेशर है वो 1 बार दिया हुआ है तो वो तो चला जाएगा. ठीक है, तो अब आपका कैलकुलेशन 0.92 इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.03 इंटू ये हो जाएगा 10 पावर -24, बाहर आएगा तो -24 एंड log 10 इज 1. ठीक है, रेस्ट कैलकुलेशन यू कैन डू, यू गेट द आंसर एज 0.2.
ऑप्शन बी। समझा? तो एक अच्छा क्वेश्चन ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ gaseous and a metal sparingly soluble salt electrode electrochemical cell. So what does the unit of pressure have to be? Unit of Pressure. बार या एटमॉस्फेयर? बार भी चलेगा, एटमॉस्फेयर भी चलेगा, तो वहां पे कोई कन्वर्जन्स की जरूरत नहीं है. ओनली इन केस ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ATM. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम R को भी सब्सटीट्यूट यहाँ पर करते हैं इन केस ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम रिलेटेड क्वेश्चंस, वी हैव टेकन द R ऑलवेज एज 0.08. 0.0821 लिया है. मतलब वहां पर वॉल्यूम लीटर्स में और प्रेशर एटमॉस्फेयर में ही होना चाहिए. इसलिए कॉन्सेंट्रेशन वी आर टेकिंग इन मोल पर लीटर एंड पार्शियल प्रेशर्स इन ATM या बार इज ओके, बिकॉज दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, उसमें इश्यू नहीं है. बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया होगा तो कन्वर्जन जरूरी है. MMHg दिया है तो कन्वर्जन जरूरी है. टॉर दिया है विच इज इक्वल टू MMHg, कन्वर्जन रिक्वायर्ड. गॉट इट? Yes, sir. 80th question. At 298 Kelvin, the standard reduction potentials are 1.51 for MnO4 negative Mn2 plus. Permanganate to manganese is 1.51 volt. Then chlorine से chloride ion it's 1.36 and bromine से bromide ion 0.54. iodine से iodide नहीं, ये 1.07 है और 0.54 है. अब at pH equal to 3, permanganate is expected to oxidize which ions? Chloride, bromide, iodide, all of them, या some specific? What is the funda for the oxidation? कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा? What is the condition? Reduction potential has to be higher. Reduction potential has to be higher. मतलब ऊपर वाला जिसका हायर SRP होता है, it has higher tendency to undergo reduction, तो वो नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर पाएगा. Now, as per the values of permanganate, which is 1.51 volt, all the halogens are below it. So, will it be able to oxidize all of them? Yes. Yes, but under the condition that H plus concentration is standard 1 molar. यहां पर at pH equal to 3 एक कंडीशन दे दिया है. At pH equal to 3 मतलब जो पोटेंशियल 1.51 है, this is at the H plus concentration equal to 1 molar. Do you agree? Yes, sir. बट अब आपको एक कंडीशन दिया है कि pH equal to 3 है, यानी H plus का concentration is how much? 10 raised to -3. 10 raised to -3 मोलार हो चुका है. मतलब अब ये E0 के हिसाब से आपको कंसिडर नहीं करना है. You have to first find E and then compare it with the EMFs of all the halogens. समझा? Yes, sir. अगर ये कंडीशन ऑफ pH equal to 3 नहीं दिया होता, आंसर would have been definitely all the halides. ठीक है? तो अपनर्स्ट इक्वेशन से करना क्या है? E of MnO4 negative / Mn+2 non-standard EMF फाइंड करोगे. Again, before you find the non-standard EMF, what is important? Balanced equation. Again, बार बार बोल रहा हूं, बिना इक्वेशन के आप लॉग वाले टर्म को बराबर नहीं लिख पाओगे. So, MnO4 negative will change to Mn+2 by gain of 5 electron because the change is from +7 to +2. ठीक है? अब ये रेडॉक्स को हम बैलेंस कैसे करते हैं?
What are the steps? जल्दी. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के सारे एलिमेंट्स बैलेंस होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? balance H H पहले नहीं करते हैं. OH minus first and then H plus. फर्स्ट ऑक्सीजन एंड देन H. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितना ऑक्सीजन उतना पानी. सो ऑक्सीजन 4 है तो 4 पानी ऑन द राइट, एंड देन हाइड्रोजन बैलेंस करो बाय एडिंग 8 H प्लस आयंस. अगर ये बेसिक मीडियम में है तो ऐड OH माइनस ऑन बोथ द साइड एंड देन कन्वर्ट इट इनटू H2O एंड यू कैन गेट द अल्कलाइन मीडियम वाला रेडॉक्स. ये सिंपल स्टेप्स हैं रेडॉक्स के. ठीक है, तो अब एज पर दिस रिएक्शन दिस विल बी E0 माइनस 0.0 मेंशन्ड है, हाँ 0.059 ही बोला है. सो 0.059 by the number of moles of electrons now are 5. This is the half reaction ना. तो 5 इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही लेना है. फिर log to the base 10 concentration of manganese upon the concentration of permanganate into H plus raised to the power 8. अब मैंगनस और परमैंगनेट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, मतलब स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर इज टू बी अज्यूम्ड. जो H प्लस है यहां पर जस्ट सब्स्टिट्यूट 10 पावर माइनस 3, सो दैट विल बिकम 10 पावर माइनस 24. ऊपर जाएगा 10⁻²4, बाहर आएगा 24 हो जाएगा. समझा? Yes, sir. तो अब जो वैल्यू आता है ये वैल्यू मैं डायरेक्टली बता देता हूं, 1.227 वोल्ट आएगा. Now with this value, analyze the question again. Now the permanganate is expected to oxidize which ions? Bromine and iodine. Only bromide and iodide. समझा? तो अगर आपने pH इक्वल टू 3 को बराबर एनालाइज नहीं किया तो आप आंसर ए मार्क करते हैं. बट अगर आपको समझ में आ गया कि ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो आप ई फाइंड करोगे और उसके बाद एनालाइज करोगे तो आंसर सी आएगा. क्लियर है? Yes, sir. ना आगे 81 से 100 वाले जो क्वेश्चंस है ना, दे आर ऑल सिंपली बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन एंड दे आर रियली वेरी सिंपल एंड स्कोरिंग क्वेश्चंस. उसमें कुछ भी नहीं है. अभी हम्म 105. आदित्य आपका यही डाउट था? Yes, sir. अब ये एडवांस में आ चुका क्वेश्चन है जो कि रिपीट किया गया था इन द February shift of 2021 and this is a very long calculative question. Question क्या है? Let's see. Copper reduces nitrate into NO and NO2 depending upon the concentration of HNO3 in solution. आपको याद रहेगा तो पी ब्लॉक में ये फंडा हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कॉपर विथ HNO3 तीन केसेस थे, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, है ना. आपको ये भी पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हमेशा कौन सा नाइट्रोजनस गैस रिलीज करता है? NO2. डाइल्यूट NO देता है और वेरी डाइल्यूट H2. N2O. नाइट्रोजनस गैस की बात कर रहा हूं. हाइड्रोजन यहां रिलीज नहीं होता है, वो तो हमेशा पानी बन जाएगा ना, बिकॉज HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमेशा पानी बनेगा, राइट. तो ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट वाले दो केसेस है जो हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन डिफर करने पर नाइट्रोजनस गैस डिफर करता है. सो copper is reducing nitrate into NO and NO2 depending upon concentration. Assuming fixed copper plus 2 concentration and partial pressure of NO equal to partial pressure of NO2, the HNO3 concentration at which the thermodynamic tendency for reduction of nitrate into NO and NO2 by copper is same
is 10 raised to x molar. The value of 2x is asked, round off to the nearest integer, and the data given is E naught of cupric copper, E naught of nitrate to NO, E naught of nitrate to NO2, and RT by F into 2.303 is 0.059. Now एक बीच में जो word दिया है ना sentence, we have to find the HNO3 concentration at which the thermodynamic tendency for the reduction of nitrate into NO and NO2 by copper is same. मतलब basically जो E cell copper reducing the nitrate into NO and the E cell for copper reducing the nitrate into NO2 वो आपको equate करना है. Now to get the E cell we have to write Nernst equation. Balanced equation. Nernst equation and Nernst के पहले balanced equation. अब पूरा redox के ऊपर ये question आ गया. It's a simple redox का application, then the application of Nernst equation बस. ठीक है, तो हमें ये reaction पता भी है और हमने balance भी किया है. It's nothing new. So copper with nitrate first oxidizing to copper and nitrate reducing to NO. चलो बैलेंस कैसे करेंगे एक बार फिर से बता देता हूं. The increase in oxidation number is how much? +2. +2, and the decrease is -3. -3. So अब इंक्रीज और डिक्रीज मिसमैच है, तो 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो. फिर ऑक्सीजन के लिए वाटर ऐड करो, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ही है, तो 4 पानी ऐड होगा और 4 पानी से 8H+ आ जाएगा. और ये एसिडिक मीडियम में है तो अल्कलाइन का कोई आगे स्टेप नहीं करना है. एंड टू कंफर्म दैट इट इज बैलेंस्ड, व्हाट डू वी चेक? Total charge. चार्ज बैलेंसिंग. तो -2 + 8 + 6 आया, 3 × +2 + 6, सुपर, इट इज अ करेक्ट बैलेंस्ड रिएक्शन. ठीक है. Similarly, copper with the nitrate oxidizing to cupric and reducing to NO2. The increase is +2 and the decrease is -1. So -1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो. अब यहाँ पर 6 पानी और यहाँ 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो बैलेंस करने के लिए ट्वाइस ऑफ H2O एंड उसके साथ 4H+ एंड चार्ज देखोगे तो बैलेंस्ड है. ठीक है, तो ये आपका रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है. नाउ फॉर द फर्स्ट रिएक्शन लेट्स राइट द E ऑफ द सेल. तो इसको मैं E1 बोलता हूं. ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू E naught ऑफ द सेल. नाउ द E naught ऑफ दिस सेल फॉर दिस रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू व्हाट माइनस व्हाट? E naught of the cell. NO3 NO -. नाइट्रेट टू NO वाला EMF माइनस क्यूप्रिक से कॉपर वाला EMF, जिसका वैल्यू है नाइट्रेट टू NO 0.96 एंड 0.34. तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? So कितना आ रहा है? 362 0.62. ये E naught ऑफ द सेल हो गया. माइनस 0.059 बोला है तो वही ले लो. 59 upon what is the number of moles of electrons transferred overall for the first reaction? 6. 2 into 3 ना ये वाला, तो यहाँ 6 आएगा into log to the base 10 cupric raised to 3. partial pressure of NO gaseous है and नीचे nitrate raised to 2 and H+ raised to 8. ठीक है. और similarly E2 of the cell अब फटाफट से हो जाएगा 0.79 minus 0.34, that is 0.45 minus 0.059 by
अब जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 है, इनटू log to the base 10 कॉपर प्लस 2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन द नाइट्रेट concentration squared and H plus concentration raised to 4. Understood? Yes, sir. अब जो कंडीशन बोला गया है कि HNO3 concentration ढूंढो at which the tendency for reduction of nitrate into NO and NO2 by copper is same. For that the E1 of the cell will be equal to E2 of the cell. तो आपको just equation 1 और equation 2 को equate करना है, ठीक है। तो जब इक्वेट करेंगे तो 0.62 माइनस 0.45 का डिफरेंस 0.17 आ जाएगा, हाँ कि नहीं। Yes, sir. और ये वाला पार्ट इस तरफ आ जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, सो 0.059 बाय, अब यहां पर देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, आई कैन टेक इट कॉमन। तो मैं एक काम कर सकता हूं, आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 टू गेट दैट 6 सो दैट आई कैन टेक इट कॉमन। और ये वाला 3 जो है अगर मैं इसको लॉग के पावर में रेस कर दूं तो आप ऑब्जर्व करोगे कॉपर प्लस 2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैंसल ऑफ हो जाएगा क्योंकि वो दिया नहीं है आपको, ठीक है। तो ये क्यूब हो जाएगा, ये रेस टू 6 हो जाएगा, और ये रेस टू 6 और ये रेस टू 12, बराबर। समझा क्या किया? Yes, sir. तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में द कैलकुलेशन शुड बी इजी क्योंकि 0.059 बाई 6 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। एंड दिस लॉग माइनस दिस लॉग आएगा। नाउ लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी, तो वो पूरा रेशियो आ जाएगा अपने पास, इनफैक्ट दिस अपॉन दिस। तो अगर मैं यहीं पे आपको कैंसलेशन शो करूं तो ये वाला निकल जाएगा, राइट। हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर, हाँ। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ NO आपको बोला है इक्वल है टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, ठीक है। अब कैंसलेशन होने के बाद भी यू हैव द पार्शियल प्रेशर रेज टू पावर 4, ठीक है। लेकिन प्रेशर के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन किया, और जब कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो यू हैव टू कंसिडर इट एज 1, तो वो पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बचेगा HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो लेट द HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन बी इक्वल टू x मोलर। तो आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन दोनों x हो जाएगा। तो ये पूरा पावर जो है x रेस टू 10 हो जाएगा और ये पूरा पावर x रेस टू 18 हो जाएगा, हाँ कि नहीं। Yes, sir. तो x रेस टू 18 ऊपर आ जाएगा और x रेस टू 8 नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा x रेस टू 10, बराबर। Yes, ऐसा नो, बस आगे कैलकुलेशन करना है और 10 रेस टू x को आपको आइडेंटिफाई करना था और फिर उस x को 2x करके आंसर करना था। तो आगे का पार्ट हो जाएगा ना। सिर्फ इसमें 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट था, एक तो रिडॉक्स वाला स्टेप और एक नर्स्ट इक्वेशन वाला स्टेप, आगे पूरा कैलकुलेटिव है, समझा। So, but how to solve this? So this will be 0.17 0.059 by 6 into 10 into log of x to the base 10। तो जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आएगा वो 10 रेज टू पावर में कन्वर्ट कर दो, वही जो पावर है वो आपका आंसर होगा। सॉल्व करके बताओ क्या। So, but how do you approximate 10 का power लेना? हाउ डू यू अप्रोक्सीमेट Will लेफ्ट come हैंड as साइड। suboptimal, right? सी लेफ्ट हैंड साइड, एक मिनट, क्या आंसर आता है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। नॉट 5, why they are getting x raised to 8, कुछ गड़बड़ है क्या। x raised to 8 क्यों आया उनका।
हाँ, ये x रेज टू 10 हो जाएगा ना, दिस इज x रेज टू 18 अपॉन x रेज टू 10 जो कि x रेज टू 8 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये सॉल्व करने के बाद व्हाट यू गेट इज 2.16 log of x to the base 10 is 2.16. So x का वैल्यू जो है ना, that will be 10 raised to 2.16 which is the concentration ना, what we have assumed. तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, 10 raised to x molar concentration है, तो this x का वैल्यू is 2.16. So they have asked the answer for 2x which will be equal to 4.32 and nearest integer में उन्होंने round off करने बोला है, इसीलिए this will be approximated to 4 and that's why the final answer is 4. Gautam, is that clear? Yes, yes, sir. आदित्य क्लियर हुआ ये? Yes, sir. ठीक है, any other doubt in this? No, sir. Yes, sir. ओके, तो काइनेटिक्स ले लेते हैं। ठीक है, डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड, फिर कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछो। फिफ्थ क्वेश्चन, consider the following reactions of A to P1, B to P2, C to P3, D to P4. The orders of above reactions are A, B, C, and D respectively. The following graph is obtained when log of the rate versus log of the concentration is plotted. Among the following, the correct sequence for the order of the reaction is log rate versus the log of concentration का एक ग्राफ प्लॉट किया है और 4 रिएक्शंस के लिए आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। दिस इज डी, ये वाला बी है, ये वाला ए है और ये सी है। दिस इज द ग्राफ गिवन। हाउ वुड यू एनालाइज दिस? Compare the slopes. Based on the slope. So for nth order reaction, we know that rate is equal to k into concentration raised to the power n. तो अगर log ले लेंगे तो log of the rate will be equal to log of k plus n into log of the concentration. So if you plot this on the y-axis and this on the x-axis, the slope is the order. बराबर, तो सबसे ज्यादा स्लोप जिसका उसका ऑर्डर सबसे ज्यादा. So the answer will be B, B, and C. D, B, A, and C. So the answer is option D. Twelfth question. For an elementary chemical reaction A2 with the rate constant K1 gives you 2A and backward reaction ka rate constant is K inverse. The expression for dA by dt will be what? Now for a reversible reaction, how do you apply the rate law? अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो KF और KB के बेसिस पे हाउ डू वी अप्लाई द रेट लॉ? See, with respect to A2, the rate is minus d A2 by dt, and with respect to formation of A, it's plus 1 by 2 into dA by dt. हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब आपसे dA by dt पूछा है, ठीक है, तो ये हाफ वाला पार्ट जो है आपको यहां से हटाना पड़ेगा. Now the rate for any reversible reaction can be written as K forward
into the concentration of the reactant minus K backward, which is K inverse, into the concentration of the product raised to whatever stoichiometric coefficient is there. तो ये होगा आपका रेट लॉ. अब आपसे dA by dt पूछा था, तो ये 2 वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा and hence the answer will be 2k1 A2 minus 2k inverse A का square. Option C. समझा? So can we write the equation for forward and backward separately and then add them? हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो. मिलेगा वही ना, लेकिन Yes, I was just asking. हाँ. Hmm. 15th. The rate law for the reaction below is given by the expression KAB. So rate is equal to K into A into B. If the concentration of B is increased from 0.1 to 0.3, keeping the value of A at 0.1 mole, the rate constant will be B का concentration. Why? Because it only depends on temperature. हाँ, अब अगर स्टूडेंट्स ने रेट कांस्टेंट की जगह रेट पढ़ा तो आंसर क्या होता? 3k. 3k. अगर कांस्टेंट वर्ड मिस हो जाता है तो आंसर चेंज हो जाएगा. तो रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए द आंसर इज डी. तो ये कैच था बस. 21. The following mechanism has been proposed for the reaction of NO with Br2 to form NOBr. Mechanism का पहला स्टेप है NO plus Br2 reversibly gives you NOBr2, and then the NOBr2 reacts with NO to give 2NOBr. If second step is the rate determining step, then the order of the reaction with respect to NO is what? सेकेंड स्टेप आपका RDS है. हाँ, बोलो. 2 कैसे आएगा? बोलो, स्पीक अप. Because it's NO into NOBr2, but NOBr2 itself is NO raised to 1. दिस इज एन इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन. अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो एक्चुअल रिएक्शन क्या है आपका? NOBr2 इंटरमीडिएट है, मतलब 2NO plus Br2 gives you 2NOBr. ये नेट रिएक्शन होगा. एंड कोई भी रेट लॉ जो है ना, it will be of the type K into concentration of the reactants raised to the power X and Y, which are experimentally determined. मतलब it should be of the type NO raised to X and Br2 raised to Y. अब अगर सेकेंड स्टेप को आप लेंगे तो आपको NOBr2 भी टर्म आ रहा है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमेशा क्या, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया होगा. तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन से आप के इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं, which is concentration of NOBr2 upon the concentration of NO and Br2. तो NOBr2 का concentration जो है NO into Br2 into K equilibrium के बराबर हो जाएगा. समझा? इसलिए वो NO raised to 1 यहां से आएगा और NO raised to 1 यहां से आएगा. 1 plus 1 with respect to NO, ये ऑर्डर 2 हो जाएगा, इसलिए आंसर डी आता है. दैट्स ऑप्शन डी, ऑर्डर इक्वल टू 2. समझा? Yeah, sure. $37th question. A flask contains a mixture of compounds A and B. Both compounds decompose by first order kinetics. The half-lives for A and B are 300 and 180 seconds respectively.
If the concentration of A and B are equal initially, A naught और B naught equal हैं, the time required for the concentration of A to be 4 times of B is, इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं और इसको एक शॉर्ट मेथड में भी डिस्कस किया था. Starting with the same concentration of A and B, the time required such that the concentration of A becomes 4 times of B. याद है क्या? AT is equal to A naught upon 2 raised to n. AT equal to A naught upon 2 raised to n. नंबर ऑफ हाफ लाइफ से आप सॉल्व कर सकते हो परफेक्ट. ठीक है, तो एक और सिंपल मेथड है, वही हाफ लाइफ जो फॉर्मूला है वो ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है. आई एम स्टार्टिंग विथ 100 फॉर बोथ ऑफ देम बिकॉज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम है. अब आधा होने के लिए इसको टाइम लगता है 300 सेकेंड. ठीक है, इसको आधा होने के लिए 180 सेकेंड्स लगता है. दिस इज 1 हाफ लाइफ. ठीक है, अब आपको बोला है कि जो 80 है वो 4 टाइम्स ऑफ BT होगा. ठीक है, तो अगर 4 टाइम्स हो जाएगा तो दिस वुड बिकम 200 विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव स्टार्टेड विद 100. तो इसको और आधा करो तो 25 होने पर और 180 सेकेंड्स लेगा. अब 4 टाइम्स करोगे तो वापस 100 हो रहा है विच इज नॉट फीजिबल बिकॉज वहां से तो शुरू किया है. तो और आधा कर लो 12.5, तो यहाँ पर 180 सेकेंड्स और लग गया. अब 12.5 का 4 टाइम्स करोगे तो 25 आ जाएगा. तो 50 से 25 होने के लिए और 300 सेकेंड. अब दोनों टाइम को देखोगे तो दिस बिकम्स 540 एंड दिस बिकम्स 600. दे आर नॉट बिकमिंग इक्वल. जो टाइम है वो इक्वल होना चाहिए विद द कंडीशन ऑफ A बिकमिंग 4 टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. तो और एक बार कर लो आधा 6.25 और 180 लिया. अब इसको 4 टाइम्स करोगे तो 12.5 होगा. अब चेक करो दोनों टाइम सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. 180 इंटू 4 720 होगा और ये 900 हो रहा है. नहीं है सेम. और एक बार आधा करो सो 3.125 180 लिया. अब इसको 4 टाइम्स करोगे तो 12.5 होगा. अब 12.5 में टाइम यहाँ पर 900 है और 180 के 5 हाफ लाइव्स है तो ये भी 900 है. मतलब द करेक्ट आंसर द टाइम इज इक्वल टू 900 सेकेंड्स. समझा? Yes, sir. और AT इक्वल टू A नॉट अपॉन 2 रेज टू n वाला जो रिलेशन है वो भी आप यूज करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, उससे भी मिल जाएगा. बट ये वाले मेथड्स में डायरेक्टली हाफ 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 करते जाओ और 4 टाइम्स के साथ कंपेयर करो. जहां पर टाइम इक्वल आए वो आपका आंसर. खत्म. So if they've given it like this only, can we just take LCM? मतलब The LCM of the half-life and then check. LCM of both half lives. Yeah. उसमें हर बार आंसर आता है कि नहीं आता है वो चेक करना पड़ेगा. So he means to say that the answer will always be a multiple of the LCM of the two half-lives. So in this case is 900. Okay. Yes, sir. ठीक है, तो और अच्छा मेथड हो गया ये तो. गुड इनफ. यस. ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन आया है उसमें भी आप कर सकते हो फिर, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, अप टू 40 एनी डाउट्स फ्रॉम योर साइड? अप टू 40? No, sir. 39 भी अच्छा क्वेश्चन था, रेडियो एक्टिव डीके लॉ के ऊपर. ओके 46.
decomposition of peroxide follows a first order reaction. In 50 minutes, the concentration of peroxide decreases from 0.5 to 0.125 molar in one such decomposition. When the concentration of peroxide reaches 0.05 molar, the rate of formation of O2 will be how much? How would you approach this? First order hai, and 50 minutes is the time for the concentration of peroxide to decrease from 0.5 to 0.125. इससे कुछ समझा क्या? Half life is 25 minutes. Yes. कैसे? What was the relation for first order? T half is equal to, it's covering 2 half lives in 50 minutes. हाँ, it's covering 2 half lives. इसलिए कॉन्सेप्ट भी था ना, T of 75% is always twice of T half for a first order reaction. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और T75 मतलब T 3/4. तो ये जो पार्ट होता है ये हमेशा अमाउंट विच हैज गॉट डीकम्पोज्ड और कंज्यूम्ड, जो बचा है वो हमेशा 25% या 1/4 करके आएगा. ठीक है, और वैसे हाफ लाइफ के थ्रू भी समझ सकते हो. फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये रिलेशन था, और जीरो ऑर्डर के लिए व्हाट वाज द रिलेशन? 3/2. 3/2. T75 is 1.5 times T half for a zero order reaction. ठीक है, तो अब सिंपल हो जाता है, बिकॉज थ्रू द 50 मिनट्स यू कैन फाइंड दैट हाफ लाइफ इज 25 मिनट, एंड थ्रू द हाफ लाइफ आपको K मिल जाएगा, और K के थ्रू आप DO2/dt फाइंड कर सकते हो. रेस्ट इज नाउ सिंपल. ठीक है, बाकी सब मेनली आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट लॉ के ऊपर थे, एंड लेटर पार्ट में एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटेड मेनी क्वेश्चंस वर देयर. 72. Consider the given plot of enthalpy of the following reaction between A and B, giving you the product C and D. Identify the incorrect statement. एक ग्राफ यहां पर दिया हुआ है ऑफ एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल वर्सेस द रिएक्शन कोऑर्डिनेट. मैं टू द स्केल नहीं बना रहा हूं. यहां पर आपका प्रोडक्ट D है, यहां पर A + B है, और यहां पर C है. ठीक है, अब as per the graph identify the incorrect statement. पहला, C is the thermodynamically stable product. True or false? True. True, because जो प्रोडक्ट C है that is formed as per the exothermic reaction, and exothermic में प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है as per the enthalpy consideration. तो C thermodynamically stable product है. Yes. Activation enthalpy to form C is 5 kilojoule per mole less than that to form D. Activation energy to form C will be from A to B up to this particular peak, right? Yes, sir. कितना है वो देखो, 5 से लेकर 20, 15 है. And to form D, अब A से D बनने के लिए ये वाला पीक आएगा, which is equal to 5 से मतलब 10. तो is the statement correct now? No. No. 5 किलोजूल कम नहीं है, 5 किलोजूल ज्यादा होना चाहिए. तो B इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस वर ओके इफ यू डोंट एनालाइज. बट फिर भी क्या दिया है देख लो. फॉर्मेशन ऑफ A and B from C has the highest enthalpy of activation.
फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी। अब सी से ए प्लस बी तक जाने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी जो पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड डी इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। अब डी एंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू बन रहा है तो वो काइनेटिकली स्टेबल होगा। अब याद रहेगा तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जहां पर थर्मोडाइनामिकली एंड काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट हमने डिफरेंशिएट किया था इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। कैन यू टेल मी विच वन? Yes, anyone? हाँ, Dehydrohalogenation. dehydrohalogenation नहीं, that follows E2 mechanism, and as per E2 mechanism the product is as per the hyperconjugation। तो उसमें इंटरमीडिएट तो बनता ही नहीं है ना, इट्स अ वन स्टेप मैकेनिज्म। तो अल्कीन जो स्टेबल बनेगा वो आपका डायरेक्ट आंसर, तो दैट इज एज पर द थर्मोडाइनमिकली और काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। Thermodynamically. थर्मोडाइनमिकली होता है वो सिर्फ थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट होगा। अब अगर एक एग्जांपल याद रहेगा तो इफ आई हैव ब्यूटाडाइन एडेड विथ HBr, फर्स्ट स्टेप में H प्लस प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट करने के बाद इट विल गिव यू द अलाइलिक कार्बोकटाइन लाइक दिस, and then there will be attack of Br negative and it will give this 1,2 addition product, right? Yes. अब अगर मैं यहां से इसको रीअरेंज कर देता हूं, पाई बॉन्ड का माइग्रेशन करा देता हूं, तो यहां पर पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। और अब अगर Br माइनस अटैक करेगा, यहां पर ले लेता हूं Br, तो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी डबल बॉन्ड यहां पर और Br यहां पर। इसको बोलेंगे हम 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। समझा? Yes, sir. This 1,2 product is as per the reaction intermediate stability. So जो प्रोडक्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के ऊपर बनता है दैट इज कॉल्ड, Thermodynamically stable. नहीं, इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पे इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। और जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर आता है दिस इज एज पर थर्मोडाइनमिक। और यहां पर देखोगे तो 5 हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर आ रहे हैं। इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं था, इंटरमीडिएट प्राइमरी कार्बोकटाइन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी कम है, तो यहां पर ये इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखोगे तो ज्यादा है। इसको बोलते हैं TCP, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जो E2 में हम चेक करते हैं, राइट? Yes, sir. E1 will always give you a kinetically controlled product because that is based on the stability of carbocation. आ रहा है समझ में? KCP is based on intermediate stability, TCP is based on product stability. बस 2 वर्ड में खत्म। समझा? So this was there in some DPP, right? In some? DPP. तो शायद मैंने करवाया भी है ऑर्गेनिक में। ठीक है, बट समझ गया ये काफी फेमस रिएक्शन है ब्यूटाडाइन का। अच्छा, और एक चीज, KCP जो होता है ना दैट इज ऑलवेज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर and TCP is favored at high temperature. So butadiene with HBr at a temperature of -20 डिग्री सेल्सियस अगर पूछा तो लो टेम्परेचर है, उसके बेसिस पे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट करेक्ट आंसर आएगा। और वही रिएक्शन बोल दिया 80 डिग्री सेल्सियस पे, +80 डिग्री सेल्सियस, तो आपका 1,4 प्रोडक्ट आएगा। ये ध्यान रखना। समझा गया? Yes. Yes, sir. ठीक है, up to 80 एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? So 68 and 69.
68 and 69. 68 is the rate constant K of a reaction is measured at different temperatures T and the data are plotted in the given figure. तो सबसे पहले ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को बना देते हैं और ये ग्राफ है आपका Arrhenius equation related where ln of K is plotted versus 1000 by T, reciprocal of temperature but multiply by 1000 और यहाँ पर ये स्लोप दिया हुआ है, ठीक है ऐसा। अब आपको याद रहेगा तो Arrhenius equation is Ka e raised to minus Ea by RT। तो जब इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ln of K इक्वल टू माइनस Ea by R इंटू 1 by T प्लस ln of A आता है, कि नहीं? Yes, sir. So when ln of K is plotted versus reciprocal of temperature, the slope which we get is minus Ea by R। समझा? और ये 1000 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 10⁻³ by T वर्सेस 10⁻³ by T प्लॉट किया गया है, राइट? अब ये स्लोप कितना है एज पर द वैल्यूज, dy by dx कितना आ रहा है देखो, -2। तो जो स्लोप है वो माइनस Ea by R के बराबर है और इंटू 1000 भी करना पड़ेगा। तो आपका Ea जो है दैट विल बी 2R के बराबर, नहीं एक मिनट, सॉरी 1000 वहां पर आपका मल्टीप्लाई होगा Ea by R और इंटू 10⁻³, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा 2R और ये किलो जूल्स में आंसर आ जाएगा। समझा आदित्य? Yes, sir. एंड 69 भी पूछा ना आपने? Yes, sir. The rate of a certain biochemical reaction at physiological temperature T occurs 10⁻⁶ times faster with enzyme than without. एंजाइम के प्रेजेंस में 10⁻⁶ times faster है as compared without enzyme. The change in activation energy upon adding enzyme is. Now यहां पर आपको एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस या चेंज फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, रेट यानी जो रेट कांस्टेंट्स है वो डिफर कर रहे हैं। अब हमने एक Arrhenius इक्वेशन डिराइव किया था, इफ यू रिमेंबर, log of K2 by K1 to the base 10 is equal to Ea by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2 बराबर। Yes, sir. Now this is a formula to be applied when the rates are different at the different temperatures with constant activation energy. लेकिन अब यहाँ पर ट्विस्ट है, टेम्परेचर फिक्स है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रहा है, तो आपको एक नया इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा जो हमने डिराइव नहीं किया है, बट आसान है। log K to the base 10 is equal to minus Ea by 2.303 R into 1 by T plus log of A। ये आपका लॉगरिथम फॉर्म है। अब मैं एक एक केस के लिए इसको K1 ले लेता हूं, इसको E1 ले लेता हूं और टेम्परेचर फिक्स रखता हूं, और एक इक्वेशन ले लो, log of K2 will be equal to minus Ea2 by 2.303 R into 1 by T plus log A। अब सेम वे में इसको डिराइव कर लो डिफरेंस के साथ। तो जब आप डिफरेंस लोगे तो नाउ व्हाट यू गेट इज log of K2 by K1 to the base 10 is equal to, when you take the difference, Ea1 will become positive, तो जो डिफरेंस है Ea1 माइनस Ea2 आ जाएगा अपॉन 2.303 RT कॉमन आ जाएगा। समझा? Yes, sir. तो K2 by K1 जो है वो 10⁻⁶ है, ठीक है, तो वहां पर log 10⁻⁶ मतलब 6 आ जाएगा, तो ये 6 इंटू 2.303 इंटू RT, और वही फॉर्मेट में आपको पूछा है, दिस इज Ea1 माइनस Ea2,
अब दो ऑप्शन है, एक प्लस का भी और एक माइनस का भी. विच विल बी द करेक्ट आंसर? minus. माइनस, बिकॉज व्हाट दे आर आस्किंग इज EA2 माइनस EA1, है ना, विथ एंजाइम माइनस विदाउट एंजाइम. तो आपका जो आंसर है वो निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए आंसर इज बी. अंडरस्टूड? समझा? Yes, sir. बाकी नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप्स देखोगे ना आप, दे आर ऑल बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन या फिर स्लोप रिलेटेड ये ln वाले इक्वेशन के फॉर्म में. 95 देख लेते हैं. A sample of milk splits after 60 minutes at 300 Kelvin and after 40 minutes at 400 Kelvin. When the population of Lactobacillus acidophilus in it doubles, the activation energy in kilojoule per mole for this process is closest to. अब ये 60 minute at 300 Kelvin and 40 minute at 400 Kelvin. What are these values? Like, They are half-lives because when the population in it doubles बोला है, तो population doubles के related यहाँ पर ये जो value है वो half life के बराबर है. अब log K2 by K1 को अगर half life में लिखना है तो you will be writing log of T1 by T2, मतलब half life of first case upon the half life of second case, and rest of the formula remains the same. समझा? yes, sir. Half life 1 by 2 equal to EA by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. अब rest is simple calculation which you can do. ठीक है, I think I've discussed few of the important questions from the PYQ of kinetics. Any doubt apart from what I have discussed? No, sir. No, sir. Fine.